Hello everyone, Namaskar. Welcome you all to the beautiful platform of Adhyalay. This is lecture number 2 on the topic transport in plants. Okay, so let us start. So I had given you this small homework to do, right? I hope everyone has done it. Yes, there are few things which you need to see. That simple diffusion. Do they require membrane protein? No, it just diffuses, right? But in facilitated and active transport, you require carrier proteins, right? Yes, yes. Is, is simple diffusion selective? No, because all types of molecules are going. It is not selecting. But facilitated and active transport, they are highly selective. Why they are highly selective? Why they are highly selective? Because proteins are carrying them. Carrier proteins are carrying them. So obviously, carrier protein will decide that I should carry this molecule or not. They will select, right? So in facilitated and active transport, the transport is selective because the carrier proteins will select which molecule to take into the cell. Transport saturates. Transport saturates. What do you mean by this? You can see that in facilitated and active transport, you are seeing transport saturates, right? In simple diffusion, you are seeing that transport does not saturate. Transport saturates means it reaches to the maximum level, the amount of substances, the amount of molecule which can pass through, that has become maximum. For example, I am talking about diffusion. So for diffusion, can you limit the molecule? Can you limit on the number of molecules that only these many should go? No, right? It can easily pass through the membrane in diffusion. So it can't get saturated until and unless concentration becomes same. If concentration is same, then you can say that yes, now there is equal movement, right? But if there is difference in the concentration, if there is difference in the concentration from higher concentration to lower concentration, if there is difference in the concentration higher to lower, obviously diffusion will take place, right? So as long as you have difference in the concentration, diffusion happens, right? But in case of facilitated and active, what happens? In case of facilitated and active, you require something, right? You require protein carriers. You require carriers. Yes? So let's say you want to transfer 3 molecules. You want to transfer 3 molecules. You can see, right? At a time, how many molecules you can pass? Can you pass 3 molecules at a time? Given that you have 2 carrier proteins in the membrane, given that you have 2 carrier proteins in the membrane, can you pass 3 molecules? No, right? Only 2 will go at a time, and that time we will say that the transport got saturated. You cannot add any more molecule until and unless these get free. Until and unless these 2 get free, you can't transfer the next molecule. That is the meaning of transport saturate. So carrier protein we use in facilitated and active transport. So obviously, there the transport will get saturated, right? Because it is dependent on the number of carrier protein. है ना? If you want to transfer 100 molecule and if you have 2 carrier protein, every time 2 molecules will be going, it will get saturated. Again, you have to wait. For what? You have to wait for this to become empty, right? You have to wait for this to give the molecule this side. Again, it becomes empty. Again, you can give 2 more.
and likewise you will keep giving 2, 2, 2, right? So transport gets saturated. You cannot, as your wish, right? If you want to move the molecule in facilitated and active, you are dependent on the carrier protein. So obviously number of carrier proteins, if all are busy in transporting, they are saturated. They will be like, I am busy, I can't transport any more molecule. So that is saturated condition. So you will get that in facilitated and active because they use carrier protein. You don't get that in simple diffusion because they don't use any carrier protein, right? As long as you have difference in the concentration gradient, diffusion takes place, right? Then uphill transport. Will you get that in simple diffusion? Uphill. Uphill means lower to high. From low concentration to high concentration. That is the meaning of uphill. So does that happen in simple? No. It is passive, right? You can write in your book, right? It is passive. Even the facilitated transport, that is also passive. Why? Because you don't require ATP. You just require carrier protein. Is it not? Yes. So even this is passive. So if these two are passive, it means the movement happens from high to low concentration. Very simple, right? So uphill transport happens only in active transport, right? Requires ATP energy. Requires ATP energy. Which will require ATP? Passive will never ever require ATP because movement happens from high to low. But active will require ATP because it transfers the molecules from lower to higher concentration. So here you require ATP. So in which type of transport you will require ATP? In active, not in simple diffusion and facilitated, right? Is it clear? So this was the table which was very, very important. Okay, you should remember it always. If your concepts are clear, nothing to remember in it. If your concepts are not clear, it will create problem, right? Chalo. So that is that. Now in today's class, we are going to learn about plant-water relation. Plant-water relation. What is the relation between pani and पौधा, water and plant? ठीक है? We know that roots will be absorbing the water, and then from the root it has to go upwards, right? It has to go to the leaf, it has to go to the branches, stems, right? So plant water relation we are going to learn. Before we learn that, there are few terminology which we have to know, which happens in the plant cell. The movement of water which is happening in the plant cells. To understand that, we should learn few concepts. Okay? So let us start from the first one. Water potential. From the first one, what is that? Water potential. Water potential. Water potential is denoted by psi. इसको पढ़ते क्या हो? PSI. क्या पढ़ते हो इसको? psi. 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 डिनोट करते हैं त्रिशूल के जैसा, त्रिशूल, ठीक है? यू डिनोट इट लाइक अ त्रिशूल. पढ़ते कैसे हो इसको? साए. तो वाटर पोटेंशियल का सिंबल ये हो गया. वाटर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. घबराओ मत, मैं पूरा समझाऊंगी. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, yes Raj, it is also there in chemistry, that's right. Water potential is equal to solute potential plus pressure potential. Solute potential plus pressure potential. चलो अब इसको सीखते हैं. क्या है water potential? Water potential. Potential मतलब ability, right? Potential का मतलब क्या होता है? आप में कितना potential है? How much ability do you have? आप में कितना पोटेंशियल है, राइट? उसी तरह वाटर पोटेंशियल का मतलब भी वही हुआ. द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू मूव फ्रॉम
टू मूव फ्रॉम, कहां से कहां जाएगा पानी? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ जाएगा या कम से ज्यादा की तरफ? जहां पानी ज्यादा होगा वहां से वो कम की तरफ जाएगा। तो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? अगर पानी यहाँ ज्यादा है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, एंड मान लो इस साइड आपका कम वाटर मॉलिक्यूल है, कम है, और इधर ज्यादा है, तो पानी की पोटेंशियल क्या होगी? पानी को क्या मन करेगा कि मैं यहां से इधर आ जाऊं। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, तो पानी का मन क्या करेगा? पानी विल वांट टू गो फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी। यही है वाटर पोटेंशियल, कि पानी की ये पोटेंशियल है टू गो फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ए साइड का वाटर पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, तभी वो बी की तरफ जा रहा है। तो वाटर पोटेंशियल को हम डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं? जितना ज्यादा पानी होगा, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, राइट? तो मैं बोल सकती हूँ कि चैम्बर ए जो हमने बनाया है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, वो आपका क्या है? बताएगा आपको कि ये वाटर पोटेंशियल की एबिलिटी है, ये वाटर की एबिलिटी है। अगर मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, across a differentially permeable membrane और selectively permeable membrane, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। याद है ना, बचपन में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? जहां पानी ज्यादा होता है उधर से वो कहां चला जाता है? जहां पानी कम होता है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल across a selectively permeable membrane or differentially permeable membrane. Okay, so that is osmosis. तो वाटर पोटेंशियल कब ज्यादा होगा? समझ आया? जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है? जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल, मतलब पानी को उतना मूव करने का मन करेगा। पानी विल लाइक टू मूव बहुत ज्यादा। अगर पानी ज्यादा है, जितना पानी होगा उतना मूवमेंट होगा, और जितना मूवमेंट होगा, जितना मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बताओ? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं? द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द मोशन, क्या बोलते हैं उसको? पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है, एक मोशन जब होता है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हो? बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जितना पानी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा? क्या मैं बोल सकती हूँ जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? बिल्कुल बोल सकती हूँ। चलो, तो इसको एक जगह समरी करके लिख दो। तो जितना वाटर ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा। सिंबल में आप ऐसे लिख सकते हो, उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा। जितना वाटर पोटेंशियल ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो हमेशा पानी कहां से कहां मूव करता है? अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो पानी हमेशा जिधर ज्यादा पानी है उधर से कम पानी की तरफ जाएगा, जिधर ज्यादा वाटर पोटेंशियल है उधर से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जिधर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उधर से कम काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होता है। तो बताओ, वो फ्री एनर्जी है, मूवमेंट हो रहा है ना, तो वो फ्री है
या बंधा हुआ एनर्जी है, इट इज टायर्ड और इट इज फ्री एनर्जी, मूवमेंट की वजह से एनर्जी है ये, तो इट इज विच टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज फ्री एनर्जी। ये वाटर की क्या है, कौन सी एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, क्योंकि वो मूवमेंट करेंगे ना, राइट। तो देखो, जितना ज्यादा पानी उतना वाटर पोटेंशियल, है ना, जितना ज्यादा पानी उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जितना ज्यादा पानी उतना ही ज्यादा फ्री एनर्जी होगी वाटर की फ्री एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। दिमाग में इसको फिक्स कर लो, पूरा एनसीईआरटी में इसको लंबा चौड़ा कहानी की तरह लिखा है, इसको दिमाग में फिक्स रखो, ठीक है। मोर वाटर पोटेंशियल, मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर फ्री एनर्जी। एंड ये अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, एक्चुअली ऑस्मोसिस के केस में पानी जाता है ना, तो अगर पानी जाता है ना तो हम उस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इफ वाटर इज मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगर पानी मूव कर रहा है मेम्ब्रेन से, तो हम एक स्पेशल नाम देते हैं उस मेम्ब्रेन का, एंड उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप मेम्ब्रेन से पानी को मूव करा रहे हो ना, इफ वाटर इज मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो हम उस मेम्ब्रेन को क्या नाम दे देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, यू कैन से दैट movement of water from its higher concentration to its lower concentration, movement of water from higher water potential to lower water potential, movement of water from its higher kinetic energy to lower kinetic energy, movement of water from its higher free energy to the lower free energy। समझ आ गया ना, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब भी उससे हम सॉल्यूट को पास कराते हैं ना, जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम सॉल्यूट को पास कराते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सेलेक्ट करेगा कौन सा मॉलिक्यूल को पास करना है, किसको नहीं करना। या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्ट कर रहा है, या बोल सकते हैं कि वो खुद से डिफर कर रहा है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर, स्पेशली वाटर को मूव कराते हैं, तो हम उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होगे ना कि कब क्या बोलना है। अगर आप सॉल्यूट को पास कराते हो ना, अगर सॉल्यूट को पास कराते हो तो आप इसको सेमी परमिएबल नहीं बोलोगे, गॉट इट। सेमी परमिएबल हम सिर्फ पानी के लिए यूज करते हैं, ओके। जब सॉल्यूट वगैरह क्रॉस करे तो हम उसको सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। चलो, तो ये हो गया आपका वाटर पोटेंशियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। चलो, अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं। वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। चलो, इसको समझने के पहले एक एग्जाम्पल सुनो, है ना। मान लो मैंने आपको एक पानी दिया, नहीं मैथ्स नहीं है राज, डोंट वरी। मान लो मैंने आपको एक प्योर वाटर दिया, हाँ, प्योर वाटर। तो बताओ प्योर वाटर में क्या लगता है, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। प्योर वाटर अगर मैंने दिया तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा या कम होना चाहिए, प्योर वाटर है ना, पानी बहुत ज्यादा है, क्या होगा राज बोलो। अगर मैंने प्योर वाटर दिया है तो वाटर पोटेंशियल क्या ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पानी ही पानी है वहां, है ना, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, राइट।
और एक बात बताऊं, जब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल लेते हैं ना हम, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है पता है? द वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, इट इज 0। क्या वैल्यू है? 0। वो मैक्सिमम वैल्यू है, सोचो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ना, क्योंकि ये प्योर वाटर था, क्योंकि ये प्योर वाटर था, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब कहानी आगे की सुनो। मान लो मैंने आपको ना, आपका लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, तबीयत खराब है, आपको मैं शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन दे रही हूँ पीने के लिए, ठीक है, तो वो प्योर वाटर तो नहीं है, उसमें मैंने सॉल्यूट को मिक्स किया, है ना, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, लेट्स से शुगर और सॉल्ट मिक्स करके बनाया, या आपको जो पसंद है वैसा वाला सॉल्यूशन बनाया। तो बताओ इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? प्योर वाटर से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? सोचो, इसमें मैंने मिक्सिंग कर दी, तो प्योर वाटर से इसका वाटर पोटेंशियल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कम होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्यूट मिक्स कर दिया है, ये प्योर वाटर नहीं है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल तो कम हो गया। तो कम होगा, कम होगा, तो वैल्यू क्या होगी? सोचो, 0 से कम क्या होता है? 1, 2, 3। क्या ये 0 से कम है? 0 से कम क्या होगा? नेगेटिव होगा, होगा ना। तो कोई भी सोल्यूशन ले लो अदर देन प्योर वाटर, कोई भी सोल्यूशन ले लो अदर देन प्योर वाटर, उनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? उनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? देखो जादू, समझ गई ना? वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 से कम चाहिए। अब 0 से कम तो नेगेटिव वैल्यू ही होगी ना। सो एनी वाटर अदर देन प्योर वाटर, उनका वाटर पोटेंशियल 0 से कम होगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर का सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो 0 क्यों है? क्यों प्योर वाटर का वैल्यू 0 आ रहा है? मैंने आपको बताया कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैं प्योर वाटर लेती हूं, अगर मैं प्योर वाटर लेती हूं, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है इसमें? सॉल्यूट मैंने कितना डाला है? नहीं डाला है, 0 है। मैंने सॉल्यूट ऐड नहीं किया क्योंकि ये प्योर वाटर था। चलो प्लस करो। प्रेशर पोटेंशियल, मैं कुछ प्रेशर लगा ही नहीं रही हूँ, मैं पानी पे, अगर आप प्योर वाटर ले रहे हो, क्या उसको पैक करके आप प्रेशर लगा रहे हो उसके ऊपर? कुछ प्रेशर नहीं लगा रहे हो आप, कोई प्रेशर नहीं दे रहे हो, तो प्रेशर पोटेंशियल भी क्या है? 0 है ना। आपने, आपका सॉलिड पोटेंशियल भी 0 है और प्रेशर पोटेंशियल भी 0 है। किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। इसलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0। 0 प्लस 0 ऑब्वियसली 0 होगा ना राज? कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना, बहुत इजी मैथ्स है ये तो, राइट? 0 प्लस 0 इज 0। ओके, चलो, तो आई होप समझ आ गया होगा कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट हमने ऐड नहीं किया उसमें, प्रेशर हम दे नहीं रहे हैं, तो 0 0 0 हो गया। अगर हम कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो वो 0 से तो कम ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो सॉल्यूट ऐड किए तो 0 से कम तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी ही जाएगी। चलो अब सीखते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? देखो सॉल्यूट मतलब समझ आया ना, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब सॉल्यूट है जो हम सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो सॉल्यूट पोटेंशियल का जादू है क्या? व्हाट इट डज, क्या करता है ये, क्या इसकी एबिलिटी है? वाटर पोटेंशियल को ये बढ़ाता है या वाटर पोटेंशियल को कम करता है? सोचो, ये वाटर पोटेंशियल को कम करता है ना, नामाकूल है बिल्कुल।
वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा। जितना सॉल्यूट डालोगे उतना वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जितना सॉल्यूट डालोगे उतना वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, राइट? क्योंकि आप सॉल्यूट डाल रहे हो, पानी थोड़ी डाल रहे हो, राइट? तो सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। तो सोचो, मैं सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू को पॉजिटिव में लिखूं या नेगेटिव में लिखूं? हमेशा इसका फॉर्मूला याद रखो, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोचो, अगर मैं सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब मैं सॉल्यूट डालती हूं तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है ना? तो मुझे इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी चाहिए या नेगेटिव लेनी चाहिए? अगर मैं देखो, मान लो मैंने 2 ले लिया, सॉलिड पोटेंशियल का वैल्यू 2 ले लिया, मैंने 2 ऐड किया, प्लस मान लो प्रेशर पोटेंशियल अभी भी 0 है, तो वाटर पोटेंशियल कितना आ गया? 2 आ गया ना? 2 आया कि नहीं? लेकिन हमारा कंडीशन क्या था राज, बताओ? कंडीशन ये था ना कि वाटर पोटेंशियल 0 जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू है, यही कंडीशन थी ना? तो जब हमने सॉल्यूट डाला और पॉजिटिव वैल्यू इसका ले लिया, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वाटर पोटेंशियल तो पॉजिटिव आ रहा है ना? वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0 है। सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल तो कम होना चाहिए था, ये पॉजिटिव कैसे ले रहे हो? कुछ समझ रहे हो? इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल का हमेशा साइन क्या होगा? नोट में लिख लो इसको, ऑलवेज द साइन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी व्हाट? नेगेटिव। Always the sign of solute potential will be negative. ये गलत है, this is wrong. ये हो ही नहीं सकता, right? This cannot happen. मैंने क्या बोला आपको? It is always in negative. हम जब भी सॉलिड पोटेंशियल लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि वो हमेशा वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। पॉजिटिव ले लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी ना, हमेशा 0 से कम होना चाहिए, राइट? सो सॉल्यूट पोटेंशियल इज व्हाट? इट इज द वैल्यू बाय विच द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्यूट। आप कितना सॉल्यूट ऐड करते हो, आपके सॉल्यूट ऐड करने से कितना वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वही है सॉल्यूट पोटेंशियल। मैंने 2 ऐड किया 2 सॉल्यूट, तो वाटर पोटेंशियल कितने से कम हो गया? 2 से कम हो गया, -2 में चला गया ना? अगर मैं 4 ऐड करती सॉल्यूट तो मेरा वाटर पोटेंशियल कितने से कम हो जाता? 4 से कम हो जाता, -4 वैल्यू आता, राइट? सो दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज एडेड इन द सोल्यूशन, है ना, एंड वो कितना डिक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल, वही सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल कितना है? कितने से वाटर पोटेंशियल कम किया आपने? कितने से? -2, है ना? तो व्हाट इज सॉलिड पोटेंशियल वैल्यू? हमेशा नेगेटिव लेते हैं एंड दैट इज -2। प्रेशर पोटेंशियल में क्या करेंगे? मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन लगा दी है और एक यहाँ पे एक और चैम्बर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी पानी है, मान लो ये ए है, यहाँ पे ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दोनों साइड पानी ही पानी है, दुनिया पानी में है। लेकिन आपको देख के पता चल रहा होगा कि किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। जिधर मैंने पानी ज्यादा डाल दिया है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट? तो ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा और बी का वाटर पोटेंशियल कम, राइट?
ए का ज्यादा और बी का कम। तो इन जनरल यहां से यहां मूवमेंट हो जाएगा, दैट इज द जनरल थिंग, है ना। मान लो ये जनरल थिंग है। अब मान लो मैं क्या कर रही हूं, धुन सुनो ध्यान से। मैं इधर से ना एक प्रेशर लगा रही हूँ इस पे, मैं ऊपर से एक प्रेशर दे रही हूँ, ठीक है। मैं ऊपर से एक प्रेशर दे रही हूँ इस साइड, मैं ऊपर से एक प्रेशर दे रही हूँ। एक बड़ा सा चैम्बर है, उस चैम्बर पे मैं प्रेशर डाल रही हूँ, प्रेशर डाल रही हूँ ऊपर से। तो अगर मैं ऊपर से प्रेशर देती हूँ तो इसका मूवमेंट फास्ट होगा या स्लो हो जाएगा, सोचो। मैं प्रेशर दे देकर इसमें प्रेशर दे रही हूँ, एक तो इसका वाटर पोटेंशियल पहले से ज्यादा, ऊपर से मैं ऊपर से प्रेशर डाल रही हूँ उस पे, तो क्या होगा, क्या होगा, मूवमेंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो हमेशा प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, सोचो। when I am providing the pressure from outside, प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, बढ़ा रहा है। तो मैं प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या लूंगी, बिल्कुल सही, आई विल टेक इट पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। गॉट इट। चलो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। हाँ, मान लो ये सेल है, ये प्लांट का सेल है, ओके। मैं इसके अंदर क्या करा रही हूँ, पहले से वाटर है, ऑलरेडी वाटर है, मैं इसमें और पानी को अंदर डाल रही हूँ, मैं इसमें और पानी का सप्लाई कर रही हूँ, मैं बाहर से पानी को सप्लाई कर रही हूँ सेल के अंदर। इस वजह से क्या होता है बताओ, सेल के साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि मैं पानी बाहर से अंदर ला रही हूँ, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या करेगा, साइटोप्लाज्म इसकी वजह से क्या करेगा, सोचो। मान लो ये सेल वॉल है, हाँ, दिस इज सेल वॉल, ये बाहर का सेल वॉल है, ठीक है। तो पानी जब अंदर आ रहा है तो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इंक्रीज हुआ, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड इंक्रीज होने से साइटोप्लाज्म क्या करेगा, क्या करेगा, सेल वॉल पे प्रेशर देगा या नहीं, सोचो ध्यान से। मतलब आप अगर पानी पूरा भर दोगे तो वॉल्स पे प्रेशर देगा कि नहीं, प्रेशर ऑन द वॉल, साइटोप्लाज्म विल exert pressure on the walls, राइट, है कि नहीं। मतलब सेल के अंदर पूरा पानी भर गया और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड इस प्रेशर को हम बोलते हैं, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। बिल्कुल राज, जब सेल के अंदर पूरा पानी रहेगा मतलब सेल मैक्सिमम साइज रहेगा उसका, सेल का मैक्सिमम साइज रहेगा, है ना, बिल्कुल मैक्सिमम साइज तक वो पहुंच जाएगा, है कि नहीं। जब सेल टर्जिड टर्जिड का मतलब सेल के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है ना, सेल का साइटोप्लाज्म वॉल पे प्रेशर दे रहा है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो जब सेल टर्जिड कंडीशन में होता है तब जाके आपको सेल का मैक्सिमम साइज दिखता है, समझे। तो पूछ सकते हैं वो आपसे, कब आपको सेल का मैक्सिमम साइज दिखेगा, बड़ा सा एकदम मैक्सिमम साइज, जब सेल टर्जिड कंडीशन में होगा। फिर वो पूछ सकते हैं ना कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे बलून बलून फट जाता है ना, बलून में अगर आप ब्लो करते जाओ एयर को, कीप ब्लोइंग द एयर इनटू द बलून, अ टाइम विल कम व्हेन द बलून विल बस्ट। प्लांट सेल में ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो बर्स्ट कर जाए, क्योंकि बाहर एक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल, है ना, ये इधर से प्रेशर दे रहा है इसको,
ये इधर से प्रेशर दे रहा है ना कि भाई मेरे को बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, लेकिन सेल वॉल उसको बचा के रखता है। सेल वॉल उधर से इक्वल प्रेशर देगा, बोलेगा तो रुक जा भाई, वरना साइटोप्लाज्म सब फट के बाहर निकल जाएगा। तो सेल वॉल वो प्रोटेक्शन देता है, इसलिए प्लांट सेल आपका फटता नहीं है, इट डज नॉट बर्स्ट। क्यों? क्योंकि सेल वॉल है उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये मैक्सिमम साइज ले लेगा, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा, उधर से वॉल भी बहुत मजबूत है, वो भी प्रेशर डालेगा, बोलेगा नहीं 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 तू फट जाएगा, रुक जा रुक जा। ठीक है, सो दिस इज योर टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, है ना। पानी अंदर आ रहा है। चलो एक और कॉन्सेप्ट सुनो, सेम ही कॉन्सेप्ट है, पानी अंदर आ रहा है, बाहर मैं एक और सेल वॉल बना देती हूँ, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इतना अच्छे से समझ जाओ। कूल। तो अभी मैंने क्या बोला, पानी अंदर जा रहा है, मैंने पानी को एंट्री दी, तो मैंने क्या बोला था अभी कि साइटोप्लाज्म प्रेशर दे रहा है। तो ध्यान से सोचो, क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेशर दे रहा है? क्या एक्चुअली में सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेशर दे रहा है, या फिर उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेशर देगा? सोचो, साइटोप्लाज्म तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ ये दूसरा कोई थोड़ी है, इसी का तो स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो उसको पुश करेगा ना। So along with cytoplasm, the plasma membrane will also exert pressure on the cell wall. तो पूरा साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? प्रोटोप्लास्ट। पढ़ाया था मैंने चैप्टर सेल में, अगर आपने अटेंड किया था वो क्लास तो। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? जब आप सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड रखते हो ना, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, राइट? मैंने सेल में पढ़ाया है। कूल। जब आप सेल वॉल को इंक्लूड नहीं करते हो, सेल वॉल को छोड़ के, सेल वॉल को छोड़ के पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो जब आपका पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट मिलके प्रेशर दे सेल वॉल पे, पूरा मिलके प्रेशर दे सेल वॉल पे, जब आपका प्रोटोप्लास्ट प्रेशर दे ऑन सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो देखो, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं देखो अभी बता देती हूँ कैसे याद रखना है। P for pressure and P for protoplast. Got it? P for pressure, P for protoplast. जब प्रोटोप्लास्ट से आपका सेल वॉल में प्रेशर जाए, यू विल कॉल इट एज प्रेशर पोटेंशियल। जब सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात आए, है ना, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, जब साइटोप्लाज्म प्रेशर दे रहा था ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, when cytoplasm was exerting the pressure on the walls, you were calling it as turgor pressure. Then the pressure which is exerted by the protoplast on the wall, that is called as pressure potential. So what did we learn in today's class? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। प्रेशर पोटेंशियल अगर वैल्यू लेना है तो क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल हमने सीखा, फिर हमने टर्गर प्रेशर भी सीखा आज की क्लास में, और क्या सीखा कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एंड पते की बात क्या है कि दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0। तो कोई और सॉल्यूशन अगर लेते हो आप, इफ यू टेक एनी अदर सॉल्यूशन विच इज नॉट प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, राइट?
So that is what we will learn in next class. We will see if you keep a cell in a hypertonic solution, what happens. If you keep a cell in hypotonic, what happens. वो वाला चीज सीखेंगे. बहुत आसान है, कुछ नहीं है. ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस तो पता है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल को जाएगा. बस ये कॉन्सेप्ट आता तो लाइफ एकदम स्मूथ जाता. ठीक है. उसके बाद सीखेंगे फाइनली इस चैप्टर के बारे में कि पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है और ऊपर कैसे जाता है. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट, जब खाना बन चुका है लीफ में, तो लीफ से खाना कैसे हर जगह पहुंचता है. दीज टू कॉन्सेप्ट्स. गॉट इट. चैप्टर पूरा लॉजिकल है. समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे, नहीं समझे तो पढ़ते रहोगे और कंफ्यूज होते रहोगे. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.